Rit Singh. He is the MD, CEO, and co-founder of the company. We have Ms. Upasana Taku. She is the chairperson, CFO, and co-founder of the company. We also have Mr. Anand Kumar. He is the vice president, corporate development and investor relations of the company. Before management gives us the detailed presentation of the company, I'll just give you brief highlights on the company's salience point and as well as some details on the IPO structure. So MobiKwik operates at the two sides platform. On one side there are users like you and me, and there are other side there are merchants. Merchants are the shopkeepers, the kirana store owners. So if you look at the numbers, as on June 2024, there are 16 crore users on the platform, and there are 42 lakhs merchants on the platform. So this number, this 16 crore users, that makes MobiKwik one of the largest platform on the digital financial products and services in India. The company had started as a wallet operator around 15-16 years back. If you look at the data from RBI for the month of May 2024, it has become the largest wallet player in India by total gross merchandise value. That's how we calculate the total spend on the platform. In terms of revenue profile, the company has been growing very fast. If you look at FY24 numbers, the company has grown close to 59% with a revenue of around 890 crore. These are the revenue numbers, but one thing that is unusual in the fintech industry is the profitability. If you look at the company's profit numbers, the company reported profit of close to 14 crore in last financial year, which is FY24. Now, the reason for this profitability is because of the company's keen focus on keeping the fixed costs low. So if you look at the employee cost or the fixed cost for the company, which is among the lowest in the industry, and if you look at also the customer acquisition cost, which is also among the lowest for this company in the industry. Company also has a very high level of focus on the technology part. The company has very dedicated engineering team which works on the data analytics and the advanced data science for this analysis. So we are the left lead of the for this issue, and we have worked with management and have been part of this incredible journey to this date. Few details on the IPO. IPO has opened today. It has already subscribed fully. Yesterday there was an anchor issue, and we had a solid demand from the marquee large domestic and global investors in this IPO. The issue closes on this Friday, which is 13th of December. The total issue size is close to 572 crore. And the key point here to note is that it is completely fresh issue. There is no investor which is selling in this IPO. The minimum bid lot size is 53 equity shares and multiples of 53 shares. The price band has been fixed at 265 to 279 rupees per equity share. Now we can have a look at the one audio visual of the company's products and services, and then I'll request management to give a presentation on the company. रोज रोज के खर्चे बैंक अकाउंट से क्यों? स्विच टू अ स्मार्टर वे टू पे विद मोबीक्विक पॉकेट यूपीआई। सर आपका पार्सल 200 रुपए। उठा लो। हर खर्च के लिए पूरे बैंक अकाउंट को क्यों छेड़ना? मोबीक्विक पॉकेट यूपीआई बैंक अकाउंट से नहीं, डिजिटल पॉकेट से पे करो।
प्राप्त हुए हैं। रुक जाओ मनोज, अब तक कितने खर्च किए पता है? बजट के बारे में सोचा है? मोबीक्विक पॉकेट यूपीआई, बजट से टॉप अप, हिसाब से खर्च। Now I'll invite Upasna to give a presentation of the company. Am I audible? Yes, yes. No? Should I use this one instead? Is it better? Yeah, better. हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते दिल्ली वालों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है उपासना टाकू, मैं मोबीक्विक की एक प्रमोटर हूँ। मेरे दूसरे प्रमोटर विपिन प्रीत सिंह यहाँ बैठे हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं हमारे होम टाउन दिल्ली में, दिल्ली की कंपनी है ये, यहाँ से शुरू हुई है। द्वारका सेक्टर 7 में हमारा पहला ऑफिस था और आज हम आईपीओ की कगार पे हैं। आईपीओ की लिस्टिंग ओपन हो चुकी है, आईपीओ का ऑफर ओपन हो चुका है आज। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है पहले तो कि मैं यहाँ पे हूँ। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट मोबीक्विक, आवर कंपनी, इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बट मोबीक्विक का परिचय आपसे कराऊँ उससे पहले थोड़ा अपना परिचय करा लेती हूँ, थोड़ा अपने बारे में बताऊँगी। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ गुजरात में और आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल कश्मीरी पंडित फैमिली। तो मेरे पापा प्रोफेसर थे फिजिक्स के और मॉम म्यूज़िक टीचर थी। तो हमारे घरों में से पढ़ाई करनी होती है और जॉब करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करते करते आई डिड माई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT जलंधर। उसके बाद था कि और पढ़ना चाहिए, शुड स्टडी मोर, बट पैसे थे नहीं एंड स्कॉलरशिप पे अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका में मास्टर्स करने की। एक जैसे कि कहते हैं गुजरात के पानी से ही एंटरप्रेन्योरशिप लोग सीख जाते हैं, वैसे ही मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई जहाँ पे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का बग नहीं लगा तो फिर आप में कुछ गड़बड़, ऐसा बोलते हैं। सो ये यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड, ये कैलिफोर्निया में है। यहाँ से मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की। देन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो हम दोनों टेकीज़ हैं, मैं और विपिन। तो HSBC में थी, फिर पेपैल में थी। PayPal, as you may know, is the world's largest payments company listed on Nasdaq. And PayPal के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट्स को नई नई कंट्रीज़ में लेके जाने की। तो यूरोप में मैंने कई कंट्रीज़ में काम किया, बेस्ड कैलिफोर्निया में थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इतने सारी अलग अलग कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में डिजिटल पेमेंट्स का काम कर रही हूँ, बट इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो हमारी अपनी कंट्री इंडिया में है। तो मैं इंडिया में आके क्यों ये ना काम करूँ? तो आइडिया बहुत अच्छा था, मेरे को तो स्टार्टअप बग लग चुका था। आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बट फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। उनको था टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, अच्छा डॉलर में कमा रही हो, US में रहती हो, ग्रीन कार्ड है, अभी इंडिया क्यों वापस आना है, वहीं कर लो स्टार्टअप, ऐसा क्या है। तो बट मुझे था वो स्वदेश वाला बल्ब मेरा भी चमक रहा था कि नहीं, मुझे तो यहीं आना है। तो वापस आ गई मैं, 2008 के एंड की बात है ये, दिल्ली आ गई मैं। और दिल्ली में मैंने करीबन 1 साल एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम किया। और मेरा प्लान था कि मैं समझूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट्स इंडिया में चल कैसे रही है उस टाइम पे। और तब मुझे लगा कि डिजिटल से ही हो पाएगा, और एक एक गांव में एक एक इंसान जाके करेगा तो बहुत साल लगेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में। तभी मेरी मुलाकात विपिन से हुई। वो अपनी कहानी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, बट टुगेदर वी सेड कि डिजिटल पेमेंट्स ही करना है और ये होगा। एट दैट टाइम 2009, 15 years ago we started।
तो आज सबको कूल लगता है बिकॉज इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बन गया है, शार्क टैंक हो रहा है, एंजल इन्वेस्टर्स बन गए हैं. बट जब हमने शुरू किया था तब ऐसा नहीं था. हमारी फैमिलीज डेड अगेंस्ट थी और हमें मार्केट से भी ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज अ कैश कंट्री, डिजिटल पेमेंट्स, व्हाई डू यू वांट टू डू, यू मस्ट बी क्रेजी. बट दैट सेड हमें अपना कन्विक्शन था, हमने शुरू किया एज अ वॉलेट कंपनी. तो आज मोबीक्विक इंडिया की लार्जेस्ट वॉलेट कंपनी तो बनी गई है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पहली वॉलेट कंपनी भी हैं. और हमने शुरू कैसे किया, द्वारका में मेरा घर था, वहाँ पे डाइनिंग टेबल था, उस पर एक मेरा लैपटॉप और एक बिपिन जी का लैपटॉप, और ऐसे हमने कंपनी शुरू की है. अपने ही सेविंग से कंपनी को बूटस्ट्रैप किया है. पहला एम्प्लॉई हमने 1 साल बाद हायर किया है. तब तक कोडिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट हम दोनों खुद ही करते थे सब कुछ. धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती रही और हमें 4-5 साल की जब कंपनी हो गई थी तो हमें खुद ही इनबाउंड PE इन्वेस्टर्स आने लग गए. और सिकोया कैपिटल इंडिया, जिसको पीक 15 कहते हैं, उनसे हमने सीरीज A भी रेज किया. उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, बजाज फिनसर्व, और फिर 2021 में हमने लास्ट प्राइवेट राउंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से रेज किया. और कंपनी की बढ़ोतरी पेमेंट्स में, बिल पेमेंट से शुरू की, फिर हम ई कॉमर्स में गए, फिर उसके बाद हम फिजिकल रिटेल यानी कि आपके आसपास के दुकानों में भी पहुंचे. और 4-5 साल पिछले जो हैं उसमें हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी को ले जा चुके हैं. 1-2 इंटरेस्टिंग बातें कंपनी के बाद ये बताऊंगी कि हमने 2021 में सोचा था कि हम IPO करेंगे, कर नहीं पाए, बट अब हो रहा है, ऐसा लग रहा है. आज डे 1 पे थोड़ा खुशी हो रही है. तब हमारा प्लान था कि हम 1500 करोड़ रेज कर रहे थे और IPO से जो पैसे आते उससे हम 3 गुना ग्रोथ लाएंगे, ऐसा हम जब इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे तब कह रहे थे. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ IPO नहीं हुआ, हमने वो पैसे रेज नहीं किए 21 में, बट तब 300 करोड़ के रेवेन्यू से इस मार्च 24 में हम 890 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर चुके हैं. 3 गुना हमने बढ़ोतरी बिना कैपिटल के ही कर ली. इन द सेम टाइम फ्रेम, उस टाइम हमारा लॉस 120 करोड़ था 300 करोड़ के रेवेन्यू पे. अब हमने 890 करोड़ के रेवेन्यू पे 37 करोड़ का एबिडा और 14 करोड़ का पैट भी करके दिखाया है मार्च में. आप कह सकते हैं कि 14 करोड़ बहुत छोटा नंबर है, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे सेक्टर में कोई और कहाँ कर पाया है 1 करोड़ भी. हमने तो फिर भी कुछ करके दिखाया है. तो प्रॉफिटेबल कंपनी हम बन चुके हैं. ग्रोथ हम पेमेंट्स में करीबन 50 से 60% की दिखा रहे हैं ईयर ओवर ईयर. एक और खास मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है हम. बिपिन और मैं प्रमोटर्स हैं कंपनी के, फाउंडर्स हैं कंपनी के. इस IPO में प्रमोटर्स कोई भी शेयर नहीं बेच रहे हैं. हम ही नहीं, हमारे एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सेलिंग. दिस इशू इज अ कंप्लीट प्राइमरी इशू. सारे पैसे कंपनी की बढ़ोतरी और ग्रोथ में ही जाएंगे. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रो कर रही है कंपनी, अच्छा कर रही है कंपनी. रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से क्लीन चिट है, कोई हमारे कंप्लायंस इश्यूज नहीं आए हैं पिछले कई सालों में. प्रॉफिटेबल भी कंपनी ने अपने आप को करके दिखाया है. बहुत फ्रूगली बनाई है हमने, प्रोडक्ट और टेक इनोवेशन के बैक पे कंपनी, और प्रमोटर ड्रिवन कंपनी भी है. यही कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती थी. बिजनेस मॉडल डिटेल में